चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, और इसके मुझे लग रहा है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के। लिसन टू मी, एक्सक्यूज़ मी, ऐसे वाक़ई तो नहीं समझ में आएगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है? ओके, देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी कैन सी दिस थिंग, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द न्यू मीडिया, ठीक है? Actually, if we talk about in the previous world, you can say where there is a centralized form of media. देखो, the core idea is you need to understand, if you want to understand the new media, you need to understand the difference between centralized and decentralized media. Centralized and decentralized media. Centralized media refers to the idea where there is a hierarchy of information like producer and consumer. Am I right? Producer and consumer. Producer used to produce the content and consumer used to consume the content. There is a hierarchy, centralized form of media. Am I right? Listen. I'm writing it so it gets in my head. Okay. So whenever I'm going to say this thing, then there is a hierarchy of information. The producer used to produce the content and the consumer used to consume the content. If the state is going to censor the content from the producer, it is possible to control the content of the media. यानी कि अगर आपका एक हायरार्की में कंटेंट चल रहा है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, अगर स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो प्रोड्यूसर के कंटेंट को कंट्रोल कर लेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सेंसरशिप डेवलप हो जाएगी, सेंसरशिप डेवलप हो जाएगी। यहां तक समझ में आती है बात, ठीक है? अगर कहानी चेंज हो जाए, कहानी डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ मीडिया में क्रिएट हो जाए, क्या हो जाए? डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ मीडिया के अंदर लेट्स सपोज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक ही बंदा बन जाए, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एक ही बंदा बन जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? decentralized form of media हो जाएगा। The decentralized form of media is difficult to control. That's why we can say this thing, the new media is always difficult to control. The new media is always difficult to control. Am I right? Because in the previous form of media, there is a hierarchy of information. Like producer से consumer तक information जा रही है, एक hierarchy follow हो रही है. Am I right? Producer का content control कर लिया, automatically censorship apply हो गई, कहानी खत्म। अब यहाँ पर अगर producer को रोकेंगे, ट्विटर के अंदर अगर प्रोड्यूसर को रोकेंगे तो कंज्यूमर पे भी फर्क पड़ेगा। The new media used to promote the ideas, the democratic ideas, the democracy, you can say. The new media used to promote the harmonization. The new media used to promote the globalization. Am I right? So the new media is a new form of media, is a modern form of media, is where is a more decentralization of content, where the content is no more centralized, where the content is not controlled in the few hands, where the content is controlled by the individual, or you can say prosumer. Am I right? So you can say this thing, over the period of time, the impact of censorship is declining by the state. Previously, the state used to censor each and everything. If you talk about print, if you talk about film, if you talk about television, broadcast journalism, the state can control anything. But in today's time period, it is very difficult for the state to control anything. Any confusion चले? ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाए ना, सबसे पहले जाके इसको बाहर फेंकना। मैं बड़ा मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, जो अरोमा फैल रहा है पूरा क्लास के अंदर से, बहुत ख़तरनाक लेवल का। ठीक है, नहीं मुझे खाना नहीं है, अरोमा बहुत ख़तरनाक लेवल का बढ़ रहा। अच्छा ओके, सो हाँ, एक सवाल पूछना है। जैसे आपने बोला कि अभी की वीडियो में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक ही अगर बंदा हो, तो उसकी क्या एग्जांपल है? प्रोज्यूमर्स आज के दौर में ट्विटर कौन संभाल रहा है? आप यहाँ भी 10 न्यूज़ कंज्यूम करते हो और एक न्यूज़ डेवलप करते हो, इंस्टाग्राम। ठीक है, अच्छा अब ज़रा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द न्यू मीडिया इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। न्यू मीडिया को कंट्रोल करना क्यों मुश्किल है? स्टेट मीडिया रेफर्स टू द मीडिया कंट्रोल बाय द स्टेट फाइनेंशियली एंड एडिटोरियली। लाइक बहुत सिंपल सी बात है, CNN और BBC, CNN BBC का फंडिंग वो करेंगे तो अपने उनके मर्जी का कंटेंट चलेगा। ठीक है, देखो याद रखो, एक्चुअल में स्टेट क्या करती है, स्टेट के 2 रोल्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीडिया कंटेंट, अनदर रोल इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ मीडिया कंटेंट। द प्रोडक्शन ऑफ मीडिया कंटेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मीडिया कंटेंट, यानी कि मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करना और मीडिया कंटेंट को प्रोड्यूस करना, दोनों स्टेट के कामों में आते हैं। सही है। अच्छा अब बहुत सिंपल सी बात है इसके अंदर,
The media outlets may be only outlet or in competition with the corporate or non-corporate media organization which are independent. अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास क्या होते हैं, प्राइवेट मीडिया आउटलेट्स होते हैं. अब स्टेट का काम क्या है, रेगुलेट करना, कोई चीज़ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट में ना चली जाए. ठीक है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट ऑफकॉम इन यूके, बीबीएफसी इन यूके, सही है, बीबीएफसी ब्रिटिश फिल्म क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है. अब जो ऑटोमेटिकली इस चीज़ के अंदर डेवलप होती है बात, द कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मीडिया एंड द स्टेट एग्जिस्ट इन द थ्री मेजर ग्रुप ऑफ थ्योरिस्ट, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट. अब मेरी बात सुनना. मार्क्सिस्ट के नज़दीक द स्टेट यूज्ड टू सपोर्ट द कैपिटलिस्ट, स्टेट यूज्ड टू सपोर्ट द कैपिटलिस्ट. ठीक है, कि स्टेट कैपिटलिज्म को सपोर्ट करेगा क्योंकि स्टेट जो है इज अ पार्ट ऑफ रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, सही है, एंड मीडिया इज अ पार्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस. बोथ आर सपोर्टिंग द कैपिटलिज्म विद इन द सोसाइटी. ठीक है. अच्छा, अब हम पोस्ट मॉडर्निस्ट की बात करते हैं. एक्चुअल में जिस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ ना न्यू मीडिया के, देखो न्यू मीडिया इज़ मोर अबाउट डेमोक्रेसी, सही है, डेमोक्रेसी के अंदर सपोर्ट किया जा रहा है. लाइक एग्जांपल के तौर पे वी कैन टॉक अबाउट तैयब एर्दोगान गवर्नमेंट. मैंने आप लोगों को एग्जांपल पहले भी शेयर की हुई थी कि जब 2015 के अंदर नहीं, वो एक्चुअली हुआ ये था कि तैयब एर्दोगान की गवर्नमेंट खत्म होती, कोप हो रहा था. तैयब एर्दोगान ने फेस टाइम को यूज़ किया था, फेस ऐप जो है, ठीक है, उसने उसमें यूज़ किया कि उसने लोगों से कहा था कि भाई आप लोग आओ और प्रोटेस्ट करो अगेंस्ट द कोप, यानी कि आर्मी जो कंट्रोल ले रही है आप उसको अगेंस्ट में आ जाओ. लोग रोडों पे आ गए, आर्मी वो कर नहीं सकी. ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया क्या हो गया, डेमोक्रेसी प्रिवेल्स विद इन द टर्की. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दुनिया के अंदर इस तरह से इजिप्ट में भी हुआ है कि इजिप्ट के अंदर डेमोक्रेसी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इजिप्ट एक ऐसी जगह है दुनिया की जहाँ पर किंगशिप्स हैं बहुत सारे अरसे तक. ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत कम अरसे बाद आई थी, बहुत अरसे बाद आई थी. तो हुआ ये था कि एक बंदे ने जो हुस्नी मुबारक की गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ एक फेसबुक पे पेज बनाया था. ठीक है, और लोग सब तहरीर स्क्वायर पे जमा हो गए थे और वहाँ पे रेवोल्यूशन आया था, जिसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड यानी कि अखवानुल मुस्लिमीन की जो गवर्नमेंट थी वो जीत गई थी. ठीक है, तो दिस वाज द सीन. ठीक है, अब अगर हम इस हवाले से बात करते हैं कि यानी कि डेमोक्रेसी जो होती है यानी कि पीपल्स ओपिनियन, यानी कि जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि सिटीजन जर्नलिज्म, ये तमाम चीज़ें आपके न्यू मीडिया के अंदर प्रमोट हो रही हैं. ठीक है, The postmodernists relate to the late 20th century movement which features the broad skepticism and reflects the different views in the relationship between the state and the media. This view specifically exists because of modern globalized form of media, ठीक है, which makes the link between the state and the media problematic. यानी कि स्टेट और मीडिया का जो लिंक है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया. पहले बहुत डिफाइन था ना, पहले बहुत डिफाइंड था. ठीक है, अब वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि होगा या नहीं होगा, लेकिन अब इसके बाद क्या है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया. लेट 20th century study promoted the significance of economics, institutional forms and institutes of power and ownership. McLuhan and Powers argue that the media cannot be controlled by those who limit the freedom of ideas and information, particularly in a world which increasingly resembles a global village. यानी कि जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है, आप इंफॉर्मेशन को रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो. देखो याद रखो, एक्चुअली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन ना, उसमें कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है. क्या मैटर करता है? कम्युनिकेशन. हर बंदा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, हर बंदा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है. जब वो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रही है तो कहते हैं कोई भी ऐसा बंदा जो कम्युनिकेशन को रोक रहा हो, तो वो जो चीज़ होगी वो फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ को सपोर्ट, जो भी बंदा फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता. ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट गो अगेंस्ट द अदर पर्सपेक्टिव इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स, वाइल मॉडर्निस्ट कौन है? प्लूरलिस्ट और मार्क्सिस्ट है. ठीक है, while the modernists see information hierarchically. hierarchically का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, सेटेलाइज फॉर्म ऑफ मीडिया, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जा रहा है, बेटा मिलिया, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जा रहा है कंटेंट, हिरारिकल मूवमेंट है. ठीक है, हिरारिकल मूवमेंट का मतलब है कि ऐसा बिल्कुल फिक्स्ड मूवमेंट है. ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक डिफरेंट थिंग. ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट द पोस्ट मॉडर्निस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया और द न्यू मीडिया फॉर्म्स, उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है, नॉन लीनियर सिस्टम्स हैं. ठीक है,
Postmodernists see in terms of networks, as Cassels note, network have become the dominant form of social organization. यानी कि networks हैं, बहुत complex हैं, एक ही media house, एक ही individual बहुत सारे different content बना रहा है, ठीक है. Because of this reason, in terms of control over production and distribution, power does not exist within the institution, but rather within the social networks. अब देखो हम क्या कहते हैं, देखो हम इसको social media क्यों कहते हैं. Information develops and rotates within the social networks. इंफॉर्मेशन बनती इसके अंदर है और रोटेट होती है, एक बंदे ने शेयर किया उन सोशल नेटवर्क्स में घूमती रहेगी. एम आई राइट? यानी कि लोग जो हैं एक्चुअल में पहले क्या था, हायरार्किकल मूवमेंट थी. लेट्स सपोज स्टेट ने एक प्रेस रिलीज जारी की और टेलीविजन पे आके किसी ने पढ़ दी, और उस टेलीविजन पे पढ़ने के बाद क्या होगा, अब स्टेट डिसाइड करेगी ये बिल्कुल ठीक है या बुरी है. बहुत सेंट्रलाइज फॉर्म है ना, बहुत सारे लोगों ने कंज्यूम कर लिया. अब क्या है, वो जो बहुत सारे लोग हैं उनमें से ही किसी ने कोई करप्शन होती हुई देखी, स्नैप ली और फेसबुक पे डाल दी, अब हर बंदा शेयर किया जा रहा है. information rotates within the social networks because this is a decentralized form of media, this is not the centralized form of a media. समझ में आई बात? This is the decentralized form of media. ठीक है, अब मैं अगेन पढ़ता हूँ. Because of this reason, in terms of control over production and distribution, power does not exist within an institution, but rather within social networks, where the media content is produced and consumed by the same people. This makes it difficult to distinguish between the producer and the consumer. Similarly, it also makes state regulation challenging nationally and globally. अब मसला क्या है, अब स्टेट जो है वो अपने नेशनल बाउंड्रीज के अंदर तो कोई रेगुलेशन बना सकती है, लेकिन आउटसाइड दोज नेशनल बाउंड्रीज वो कोई रेगुलेशन बना नहीं सकती. जब वो कोई रेगुलेशन ही नहीं बना सकती तो ऑटोमेटिकली उसका रोल कंट्रोल ही नहीं. Furthermore, we must not deem modernist concept true or false. हम उस कॉन्सेप्ट को गलत और सही नहीं कह सकते कि भाई मीडिया कंट्रोल करता है, मीडिया कंट्रोल नहीं करता. ठीक है, स्टेट कंट्रोल करता है मीडिया कंटेंट और नहीं करता. हम इस बात को ट्रू और फॉल्स नहीं देख सकते. When thinking about the ideological role of the media in the state, as well knowledge is ideological. अब दुनिया के अंदर कुछ जगहों पर स्टेट का कंट्रोल है और कुछ जगहों पर स्टेट कंट्रोल नहीं. Because पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं, there is no one meta narrative. अब कुछ सिचुएशन में हो भी सकता है तो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या करेंगे, अपने लिए ग्राउंड हर बात का खुला छोड़ते हैं. एम राइट? कि भाई ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है. स्टेट कैन कंट्रोल इन स्टेट, लेकिन मोस्टली केसेस में नहीं कर सकता. Tommy also suggests that an essential character of postmodern media is that the content reflects how different people interpret information, which contributes to the development of the media. Furthermore, the media propagates, controls and promotes different narratives, which may be true or false. यानी कि बहुत सारे narratives media develop करता है जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं. Sarup notes that in situation where knowledge is fragmented, partial or contingent, information cannot be tightly controlled by the state. Although it can be managed, for example, forms of old media operating within the boundaries, attempting to manage information with variety of political and economic and ideological discourses ensured by the state. Hence, the state relationship with the media becomes one of the managing information that cannot be controlled as it once was. बहुत सिंपल सी बात है. पहले दौर में मीडिया के अंदर स्टेट की रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी. क्या होती थी, स्टेट इन्फोर्स करता था आइडियाज़ को. स्टेट ने कह दिया दीज आर द गाइडलाइंस, यू नीड टू फॉलो दीज थिंग्स, आपको फॉलो करना पड़ेगा. समझ रहे हैं मेरी बात? स्टेट ने जो कह दिया आपने फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोड्यूसर पे कंट्रोल पॉसिबल था. आज की दुनिया में प्रोड्यूसर पे कंटेंट का पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. द मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस आर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आई बात? नहीं समझ आए? मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब ट्विटर है, फेसबुक है, ये कोई नेशनल बाउंड्रीज पे तो बाउंड नहीं हुआ. दे आर द ओपन एरिया, दे आर हैविंग द ओपन मार्केट्स. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, द मीडिया इज नॉट लिंक्ड विद द नेशनल बाउंड्री, इज लिंक्ड विद द इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट्स. एनी कंफ्यूजन चलेगा? ठीक है, अब इसमें डिजिटल ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म को समझ लेते हैं. द ऑप्टिमिज्म स्टैंड्स फॉर द पॉजिटिव साइड ऑफ द मीडिया. द न्यू मीडिया इज evolving with the e-commerce. The new media is evolving with the ideas of democracy, harmonization, the economic independence, new employment opportunities. But on the other hand, we are having some issues with the new media, like we are having issues of piracy, we are having issues of the unemployment due to technological development. One computer can perform job of hundreds of individuals. Okay, so the new media is moving towards with the scamming. The new media is moving towards the
the online frauds and online theft, or these are the issues, the new media issues. ठीक है, so this is all about the idea of digital pessimism, digital pessimist view. Okay, pessimists are the people who are going to oppose the digitalization, while if we talk about the optimists, digital optimists, they are going to support the digitalization. Any confusion till here? Any problem till here? क्लियर होगी बात? ठीक हो गया. अच्छा जी, यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड किया कि डिजिटल मीडिया किस तरह से डेवलप हो रहा है. कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम टिल हियर?